Hello and welcome. This is the final class of environment, the second part of the pollution lecture. And in this, we're going to complete our discussions on the miscellaneous parts of pollution. So far, let me just adjust the mic. So, so far, what we've seen is we have discussed water pollution and air pollution in detail. Now, the parts of pollution that are left, those are the ones that we will discuss today. Now, firstly, please understand that these parts are difficult to read, but these are not parts which require a lot of explanation from my side. Basically, आपको कोई ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर explanation की ज़रूरत नहीं है honestly. What you genuinely need in this discussion is probably an understanding of how to read the document, and that is what I will be focusing on. तो यहाँ पर कुछ pollution है, जैसे यहाँ पर radioactive pollution is something that we have to read. There is sound pollution that we have to read. There is plastic pollution that we have to read. There is solid pollution that we have to read. And there are some polluting industries that we have to read. Now, um, rather than trying to explain these things to you in a lot of detail, which I don't think is required, let me help you in reading this document, which will probably be important. देखो हमने pollution के सारे PYQs किए हैं. जो हमने pollution के PYQs किए हैं उससे हमें एक ही चीज़ समझ आई है कि यार pollution के questions करना मुश्किल है, right? That is the one thing that we've understood, that solving pollution questions is generally a difficult task. The document that I have made in such a manner that it covers almost everything. So if you look at the document, almost everything is covered. But you will also appreciate the fact that you cannot remember everything. So let me just go through the document with you and tell you कि यहाँ पर क्या क्या important है और क्या आपको याद करना है. My recommendation would be that you open the document alongside. Document uploaded है. आप जो डॉक्यूमेंट है उसको अलॉन्ग साइड ओपन करिए एंड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या वो चीज़ें हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर. दी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा समझने के लिए हमारे पास नहीं होगा. यहाँ पर ज़्यादातर हमारे पास चीज़ें रटने के लिए हैं एंड फॉर दैट I don't think I can help you in the manner that I can make you revise it. And when I take the revision session on environment, I will focus on this document first, right? तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप इसको याद करो. अब इसको कैसे याद करना है वो देखते हैं. तो लेट्स टेक अ लुक. दिस इज़ द डॉक्यूमेंट दैट आई हैव गिवन यू. तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक नमामि गंगे वी ऑलरेडी स्टडीड. उसका बस गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इट्स जस्ट मेंशन्ड हियर. उसके बाद लेट्स लुक एट व्हाट वी हैव टू सी. सो फर्स्टली देयर इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, देन देर आर discussions on solid waste, then hazardous waste, then there is a discussion on heavy metal pollution, then noise pollution in India, plastic pollution, e-waste, and highly polluting industry. Okay. Now again, not a lot for me to teach here, but a lot for you to remember here. So what I'll do is I'll go through the document page by page. मैं document खोल के page by page आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें important हैं and what are the things that you need to look out for. तो नमामि गंगे हम पढ़ चुके हैं. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात करते हैं. रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में देर इज़ वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू नो, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजिंग वर्सेज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. आप डॉक्यूमेंट साथ साथ खोल लीजिए एंड प्लीज़ रीड अलॉन्ग साइड. तो हम ऑलरेडी इन साइंस एंड टेक वी हैव रेड अबाउट रेडियो एक्टिविटी, राइट, एंड वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं. वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा. अब यहाँ पर हमने देखा क्या कि एनर्जी का एक फार्मूला होता था विच वॉज एच सी बाई लैम्डा रिलेटेड टू वेवलेंथ. या हमने देखा था इट वॉज एच न्यू. दिस इज फ्रीक्वेंसी बेसिकली. तो बेसिकली दो टाइप की बेसिकली रेडिएशंस होती हैं. वन इज कॉल्ड आयनाइजिंग रेडिएशन एंड वन इज कॉल्ड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. आयनाइजिंग रेडिएशंस वो होती हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है. इफ़ दे हैव मोर एनर्जी दे आर कॉल्ड आयनाइजिंग रेडिएशंस. इफ़ दे हैव लेस एनर्जी दे आर कॉल्ड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं जैसे कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो उतनी हार्मफुल हमारे लिए नहीं है. थोड़ा बहुत डैमेज है. इट्स नॉट लाइक दे आर कम्प्लीटली हार्मलेस. दैट कैन नॉट बी सेड फॉर ऑलमोस्ट एनी थिंग, राइट. प्रॉबली वाटर के लिए बात बोली जा सकती है, बट आयनाइजिंग रेडिएशंस हैव अ लॉट ऑफ डैमेज. आयनाइजिंग रेडिएशंस में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है. जैसे अगर इन चारों की बात करें, आपको इंस्टेंटली रियलाइज़ हो गया होगा कि गामा रेज जो हैं वो आयनाइजिंग हैं, या वो ज़्यादा एनर्जी वाली हैं, या एक्स रेज जो हैं वो भी ज़्यादा एनर्जी वाली हैं. तो जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं,
राइट. वंस वी लुक एट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लुक एट दिस, राइट. ये जो लोअर एनर्जी वाला पार्ट है, ये ऑब्वियसली हमें उतना डैमेज नहीं करता. द कट ऑफ हेयर इज यूवी रेडिएशन. हमने पढ़ा है रेडियो वेव उतनी डैमेज नहीं करेंगी, माइक्रोवेव उतनी डैमेज नहीं करेंगी, इंफ्रारेड उतना डैमेज नहीं करेगा. विजिबल लाइट तो हम फेस ही करते हैं रोज, तो उसमें भी कोई इतना डैमेज नहीं है. यूवी का जो अपर एंड है वहाँ से आयनाइजिंग रेडिएशन शुरू हो जाती है. ये जो एक्स रेज और गामा रेज हैं, दे टेंड टू डैमेज अस अ लॉट, राइट. तो ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, दे आर मच मोर डैमेजिंग. तो इफ़ यू लुक एट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जहाँ से ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है, ये उतनी डैमेजिंग नहीं है, राइट. यूवी बाउंड्री केस होता है, और इनका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा बहुत है. किसी ने कहा है कि इनसे प्रोबेबली कैंसर हो सकता है, मतलब इट्स नॉट प्रूव्ड कि इनसे बहुत ज़्यादा डैमेज है. बट अगर आप आयनाइजिंग रेडिएशन पे जाओगे, आयनाइजिंग रेडिएशन पे there is huge damage. They can ionize matter, they can knock out electrons out of our atoms, and they cause a lot of damage. ठीक है. अब damage potential is measured in terms of the type of decay that is happening. इसमें बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है. अल्फा डिके में प्रोटॉन्स होते हैं, बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गामा डिके में और भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं. इसमें जाने की डिटेल नहीं है. You don't need to know what these are. You can just understand that gamma decay is the worst and the most harmful, right? अब आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं, जो यहाँ पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक्सरे और गामा रेज, दीज आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड दे कैन कॉज कैंसर एंड वेरियस डिजीजेस. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, रेडिएशन डोज. दिस इज समथिंग दैट आई वांट आपको याद होनी चाहिए. इस पे एमसीक्यू कैसे बनेगा कि व्हाट इज़ द सेफ लेवल ऑफ रेडिएशन दैट वी कैन टॉलरेट. अब क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो आप एक्सरे तो वहाँ भी करवा रहे हो. तो इफ देयर वाज नो सेफ लेवल, देन इवन एन एक्सरे शुड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. बट एक्सरे तो हम सब नॉर्मली डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर देते हैं. मैंने भी कितने कितने पेशेंट्स के लिए एक्सरे लिखा है. तो देर इज़ अ डोजेज. उस डोजेज के अंडर अगर आप रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. उस डोज से ऊपर देयर कैन बी प्रॉब्लम्स फॉर यू. नाउ ये सेफ डोजेज कितनी है, राइट? व्हाट इज द सेफ डोजेज लेवल? दिस हैज बीन डिबेटेड, राइट? तो हमें वो सेफ डोजेज लेवल याद नहीं करना है, हमें इसका यूनिट याद करना है. तो देर आर 3 यूनिट्स, वन इज ग्रे, वन इज सीवर्ट एंड वन इज रॉन्टगेन, राइट? ये इन पे क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिट्स किसके हैं. दिस यू शुड नो. एंड इवन अ सिंगल डोज 100 रैम बहुत ज़्यादा डोजेज होती है. प्लीज़ रीड दिस, ओके? जस्ट रिमेंबर, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आपको इसको रीड करना है. आई एम जस्ट मेकिंग इट ईजियर फॉर यू. 100 रैम की अगर आपको डोजेज मिल जाती है तो अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल, राइट? एंड बेसिकली यू क्लासीफाई इट लाइक दिस. आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो ऑफ कोर्स दे हाई डोज में तो लीथल हो सकती हैं, और लो डोज में भी अगर आपको लगातार मिलती रहे तो कैंसर हो सकता है. बट अगर आप सोचो कि आई विल गेट 2 एक्सरेज डेली इन माई लाइफ फॉर 10 ईयर्स, यू विल प्रॉब्ली गेट कैंसर. ठीक है. वाई? बिकॉज इट कैन कॉज डीएनए डैमेज एंड इट कैन कॉज बोथ सोमैटिक एंड जेनेटिक चेंजेस. अब सोमैटिक चेंजेस और जेनेटिक चेंजेस में आपको डिफरेंस पता है, राइट? अब how do we get exposed to these radiations? One of the most common causes is a nuclear power plant accident. एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. फुकुशिमा के बारे में हमें पता है, चेरनोबिल के बारे में हमें पता है, बट 3 Mile Island accident also happened. And this accident on a 3 Mile Island accident also happened, and this happened in the US. ठीक है. तो अगेन नॉट समथिंग वेयर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. हमने न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में भी पढ़ा है. तो न्यूक्लियर वेस्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2, लो एंड हाई लेवल वेस्ट. एंड जो हाई लेवल वेस्ट है, ऑफ कोर्स, दैट इज द वन दैट इज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स. दिस इज कमिंग फ्रॉम रिएक्टर्स. ओके. ये जो लो लेवल वेस्ट है, दिस लो लेवल वेस्ट इज एक्चुअली द पार्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम मेडिसिन, रिसर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. दिस इज बेसिकली ऑल यू नीड टू नो इन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ रीड दिस डॉक्यूमेंट प्रॉपरली. अब इसमें ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर MCQ रेलिवेंट पॉइंट्स, तो ये तो आपको 100% याद होनी चाहिए. नाउ लेट्स कम टू सॉलिड वेस्ट. ठीक है. सॉलिड वेस्ट इंपॉर्टेंट है यार, और सॉलिड वेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है इसे हम देखते हैं. देखो, सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है. इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, माइनिंग, एग्रीकल्चरल, हर तरह का वेस्ट आता है. बट अगर आप इसके सोर्सेज देखोगे, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है. थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश बनती है तो आपको पता है, बट ब्लास्ट फर्नेस लैग होता है. ये नीचे आएंगे इंडस्ट्रीज में. ठीक है. व्हाट इज रेड मड? दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रेस मड, लाइम मड, राइट, जिप्सम,
ये कौन प्रोड्यूस करता है और कहाँ यूज़ होता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं लाइन बोल दूंगा आप याद कर लोगे, बट आपको ये याद करना है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एब्सोल्युटली। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दिस कैन बी एन एमसीक्यू। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज स्क्वेयरली विद आर अर्बन लोकल बॉडीज अंडर द 12th शेड्यूल, ठीक है। 12th शेड्यूल के अंडर अर्बन लोकल बॉडीज की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले में, ओके। नाउ हाउ डू यू एक्चुअली डील विद सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट से डील करने के दो तीन तरीके हैं, वो दो तीन तरीके हम देखते हैं। सॉलिड वेस्ट से डील कैसे किया जाता है। मान लो आपके पास सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, या लेट्स से आपके पास सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। अब आपने इसके साथ डील करना है, व्हाट वुड यू पॉसिबली डू हेयर, क्या कर सकते हो। एक तो है कि यार ओपन डंप कर दो, दिस इज कॉल्ड ओपन डंप, दिस इज द वर्स्ट वे टू डू इट, है ना, कि आप कहीं भी उसको डंप कर दो, डिजीजेस हो जाएंगी। और क्या होगा, आपने यहाँ पे मान लो सॉलिड वेस्ट डंप किया, यहाँ पे पानी आएगा, पानी लीच करेगा, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट होगा। फिर इसका तरीका है कि आप एक लैंडफिल बना दो, जो अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में करते हैं। अब लैंडफिल बनाने के दो तरीके हैं, एक है कि आप एक इंजीनियर्ड लैंडफिल बनाओ, कि आपने कहा है कि ये मेरा लैंडफिल होने वाला है, यहाँ पर पहले मैं 2 लाइन्स ऑफ कॉन्क्रीट लगाऊंगा, यहाँ तक ही लैंडफिल को फिल करूंगा, इसके ऊपर गार्डन कंस्ट्रक्ट करूंगा, ऐसा बनाओ। दिस वुड बी कॉल्ड एन इंजीनियर्ड लैंडफिल, कि आपने सोच के बनाया है। और एक एक ओपन डंप का ही वो है कि आपने एक लैंडफिल बनाई, लैंडफिल का मतलब है आप अंडरग्राउंड उस वेस्ट को फुल कर रहे हो। तो ये लैंड था, आपने इसको खोदा और आपने कहा मैं यहाँ पर वेस्ट पुट करूँगा, फिर वो इतना वेस्ट हो गया कि पहाड़ बन गया, जैसे दिल्ली की गाजीपुर साइट है, गार्बेज माउंटेन बन जाता है वो लैंडफिल की जगह, ठीक है। बट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस, बट वी सी इट कॉमनली, राइट, हो रहा है ये अनफॉर्चुनेटली, दिल्ली में भी हो रहा है। तो ये जो गाजीपुर लैंडफिल है, दिस इज वन दैट इज नॉट बिन ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। इससे क्या होगा, थिंग्स विल लीच डाउन। बट अगर आप ऐसा बनाओगे सैनिटरी लैंडफिल या इंजीनियर्ड लैंडफिल बनाओगे, तो आप लीचिंग को यहाँ पर आप कंट्रोल करते हो। देन देर आर अ फ्यू मोर प्रोसेसेस, और क्या कर सकते हो आप सॉलिड वेस्ट का, सॉलिड वेस्ट को आप यू कैन जस्ट बर्न इट, आप बर्न कर दो। बट इसमें क्या दिक्कत है, इसमें एमिशंस होंगे यार, पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, दिस इज कॉल्ड इंसिनरेशन, ठीक है। अब इसका एक बेटर तरीका है, एक बेटर तरीका है जिसका नाम है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या किया जाता है, आप थर्मली डिकम्पोज कर रहे हो, आप टेक्निकली बर्न ही कर रहे हो, बर्न उसे बोल नहीं सकते, बिकॉज यू डू इट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाते हो, बट आप ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करते, तो वो हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाता है, राइट। कार्बन रिच वेस्ट जो बायोमास वेस्ट होता है उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है। देन अनदर टेक्निक हियर इज कॉल्ड प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, आप अगेन यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू गैस यूजिंग प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बहुत हाई टेम्परेचर पे, राइट। कौन सी गैस बनाना चाह रहे हो आप, सिन गैस बनाना चाह रहे हो। व्हाट इज सिन गैस, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यू ट्राइंग टू मेक दिस गैस। एक और तरीका है इसका, और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं कंपोस्टिंग। बायोमास वेस्ट के लिए बढ़िया तरीका है कि आप इसको कंपोस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दे दो, जो इससे एक हमस लाइक प्रोडक्ट बना देंगे, राइट, ह्यूमस बन जाएगा, एंड दैट बेसिकली इज लाइक अ, इट इज लाइक अ थिंग दैट यू कैन यूज एज अ यूज एज अ फर्टिलाइजर, है ना। देन देर इज वर्मी कंपोस्टिंग ऑल्सो, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रहते हैं। देन देर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। इसमें हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके, जो उसमें जो वेट वेस्ट है उसको आप सेपरेट सेपरेट कर दो, जो ड्राई वेस्ट है उससे आप एनर्जी जनरेट करो। इसे कहते हैं RDF, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, राइट। So these are some of the ways to manage solid waste, so these are the scientific ways to manage solid waste, ठीक है। अब एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ओपन डंप्स, लैंडफिल्स, sanitary landfills, incineration plants, pyrolysis, plasma gasification, composting, leaching, waste to energy, and इसके कुछ challenges. Now these are very important, ये जो अब यहाँ पे आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। These are solid waste management rules,
कि इंडिया में सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के रूल्स क्या होंगे। तो पहले तो ये किस एक्ट के अंडर बने होंगे रूल्स, सोच के देखो। आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड रिकॉल, ऑल्दो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट। ये रूल्स किस एक्ट के अंडर बने होंगे, जो हमारी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कौन सी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब इन रूल्स में क्या कहा गया है, ये रूल्स आए थे 2016 में, फिर इनको अभी रिसेंटली अमेंड किया गया है। इन रूल्स में ऑब्वियसली जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉलिड वेस्ट हैंडल करने की, वो कैसे हैंडल करेंगी इस बारे में बात की है। तो इसमें पहले तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉल्ड सोर्स सेग्रीगेशन। देखो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट इज़ नॉट अ मोनोलिथ ना, इसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कुछ ड्राई वेस्ट है, कुछ हजार्डस वेस्ट भी हो सकता है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। आपको इसको सेग्रीगेट करना है। अगर आप इसको सेपरेट कर दोगे, सेग्रीगेट कर दोगे, तो इसको प्रोसेस करना विल बिकम मच ईजियर। अब बात यह है कि इसको सेग्रीगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए। इफ़ यू ट्राई टू डू इट आफ्टर कलेक्टिंग इट, आपने वेस्ट क्रिएट कर लिया, उसको कलेक्ट कर लिया, और अब आप सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी नहीं हो पाएगा। दैट विल ऑलवेज रिमेन अ ह्यूज चैलेंज। द बेस्ट वे इज टू सेग्रीगेट एट सोर्स। तो ये रूल्स सोर्स सेग्रीगेशन की बात करते हैं, ठीक है। देन दे ऑल्सो से कि जो पैकेजिंग वेस्ट होता है वो कलेक्ट बैक करना है ब्रांड ओनर्स को, राइट। तो अगर मान लो मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं ये वाला प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये इसका कुछ पैकेजिंग आई थी और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो मुझे आई हैव टू कलेक्ट इट बैक। फिर यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के लिए प्रोविजंस हैं कि कैसे हम रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल को बेटर बनाएंगे। लैंडफिल के स्टैंडर्ड्स हैं, राइट, और मॉनिटरिंग कमिटी है, ठीक है। अब इनको अमेंड किया गया है इन 2026 अंडर द ईपीए, एंड दैट इज व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब ये प्रॉबली इस पे एमसीक्यू आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। क्या यहाँ पर बात की गई है, पहले तो यहाँ पे कवरेज को एक्सपैंड किया गया है, ये सेम रूल्स में क्या क्या अमेंडमेंट है, एग्जैक्ट अमेंडमेंट यहाँ पे मेंशन। फिर सोर्स सेग्रीगेशन पहले वो कह रहे थे कि 3 चीज़ों में, वेट, ड्राई और हजार्डस में सेपरेट करो। अब हम कहते हैं कि वेट, ड्राई, सैनिटरी एंड स्पेशल केयर, इन 4 में सेग्रीगेट करो। देन ये बताया गया है कि बल्क वेस्ट जनरेटर किसको बोला जाएगा, राइट। तो इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है। नाउ इफ यू रीड दिस डॉक्यूमेंट केयरफुल यू विल रियलाइज कि ये जो सेग्रीगेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, ये कुछ लोगों पे है, इनको कहा जाता है बल्क वेस्ट जनरेटर, ठीक है। तो अगेन यू विल हैव टू रीड, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। ये क्लास में सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब हमने वो 25 एमसीक्यू का टेस्ट किया था, जब मैंने आपको खुद कुछ रीड करने को बोला था, तो काफ़ी लोगों से गलती हुई थी। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। अब अगेन बल्क वेस्ट जनरेटर्स पहले इन्होंने बहुत ऐसे डिफाइन कर रखे थे कि 100 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग कर रहे हो, या आपकी मार्केट 5000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। बट अब इसको डेफिनेशन को रिवाइज किया है, राइट, और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ की बात की है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, दे आर बेसिकली द प्लेस वेर यू रिकवर मटेरियल फ्रॉम वेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, राइट। इनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है इन द न्यू रूल्स। देन यहाँ पर कॉम्पेंसेशन की बात इंट्रोड्यूस करिए, राइट। पहले भी ये रूल्स में यूज़र फी और स्पॉट फाइन की बात थी, बट इसको अब पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के हिसाब से रीओरिएंट किया है। देन एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग, और जो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है उसकी जो सब्स्टिट्यूशन है उसको बढ़ाया है। तो इन्हें बोला है कि ओवर द नेक्स्ट 6 years देर आर सर्टन इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिनको एटलीस्ट 15% अपना फ्यूल ये रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल लेना पड़ेगा। दिस गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू वेस्ट टू एनर्जी। इससे पता चलता है कि यार वेस्ट टू एनर्जी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है। देन लैंड फिलिंग पे जो जो लैंड फिल्स थी उन पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी हैं और फीस बढ़ा दी, राइट। एंड देन देव ऑल्सो सेट दैट गवर्नेंस हैज़ बीन चेंज स्लाइटली। तो डू रीड दीज रूल्स, मुझे लगता है इन पे क्वेश्चन आ सकता है। अब सॉलिड वेस्ट का ही एक पार्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, दिस इज द वेस्ट दैट इज जनरेटेड, द वेस्ट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेटिंग्स। अब ये पर्टिकुलरली हजार्डस होता है क्योंकि ये इट कैन पॉसिबली बी कंटेमिनेटेड, इट कैन कॉज इन्फेक्शन।
तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आपको क्या देखना है, अगेन किस एक्ट के अंडर बने होंगे, ऑफ कोर्स आवर अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, है ना। अब यहाँ पर याद क्या करना है, ये जो 4 कैटेगरीज हैं, देर आर 4 कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, एवरी डॉक्टर हैज़ टू मग दिस अप, येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। इसमें कहाँ पर क्या डालते हैं मुझे नहीं लगता ये आपसे पूछेंगे। ब्रॉड आइडिया ले लो कि येलो में बॉडी रिलेटेड वेस्ट होता है, रेड में प्लास्टिक्स होते हैं, वाइट में देर आर शार्प्स, मतलब जैसे सिरिंज टूट गया वो सब, और जो ग्लासवेयर होता है और जो इम्प्लांट्स होते हैं, राइट, इम्प्लांट्स मतलब जैसे किसी को पेस मेकर लगना है वो ब्लू में जाता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। टिल यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि 4 कैटेगरीज हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसके कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं। अब इन्होंने कुछ और बातें भी करी कि ये क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, और इन सबको हम फेज आउट करेंगे 2 years में, बिकॉज दे टेंड टू pollute the environment. Then they also said that we will have common biomedical waste treatment facilities. देखो, बायोमेडिकल वेस्ट को इमीडिएटली ट्रीट करना पड़ता है, आप उसे छोड़ नहीं सकते एनवायरनमेंट में। अब आप इमेजिन करो इन रूल्स का लॉजिक क्या है। रूल्स का लॉजिक ये है कि आप इमेजिन करो एक हॉस्पिटल है, अब एक हॉस्पिटल में तो यार खाना भी बनता है पेशेंट्स के लिए, है ना। तो हॉस्पिटल में जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है वो 2 तरह का है, देर इज़ नॉर्मल वेस्ट एंड देर इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसको तो पूरे को ही इमीडिएटली ट्रीट करना है, हो सकता है इंसिनरेशन करनी पड़े, हो सकता है प्लाज्मा पायरोलिसिस करना पड़े, प्लाज्मा गैसिफिकेशन करनी पड़े। जो नॉर्मल वेस्ट है उसको नॉर्मली डिस्पोज करना है। तो अब या तो हॉस्पिटल ऐसा करे कि अपना पूरा ही वेस्ट ऐसे ट्रीट करने लगे, ये तो फिर बहुत कॉस्टली हो जाएगा और पेशेंट्स के लिए कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसका तरीका क्या है कि आप सेग्रीगेट कर लो, नॉर्मल वेस्ट को अलग कर दो और बायोमेडिकल वेस्ट को अलग कर दो। जब आप बायोमेडिकल वेस्ट को अलग कर देते हो उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है, राइट। तो अब ये जो ट्रीटमेंट है ये कहाँ होगा, या तो हर हॉस्पिटल अपनी खुद की स्टैंडअलोन फैसिलिटी बनाए, या हम एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाएं। तो इन्होंने कहा है इन रूल्स में कि वी विल मेक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। तो अगर आप एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसके 75 किलोमीटर के रेडियस में, विद इन 75 किलोमीटर, अगर आपके यहाँ पर कोई बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनी हुई है कॉमन, तो आप खुद अपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ भेज दो, राइट। बट अगर नहीं है देन यू मेक योर ओन, बट ट्रीट करना कंपलसरी है। बार कोड सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया ताकि वेस्ट को ट्रैक किया जा सके, ठीक है। अब वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी इसमें कवर्ड है, नॉट ओनली द हॉस्पिटल्स, यहाँ पर हम जनरली फंसते हैं। अब इनकी अमेंडमेंट हुई 2018 में, तो इसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात की गई और इसमें बोला गया कि बार कोड और जीपीएस दोनों सिस्टम आप लगाओगे। अगर आप अनसाइंटिफिकली डिस्पोज कर दोगे तो इससे हजार्डस इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, राइट। अब नाउ दिस इज डन, ये कुछ मेजर्स हैं दैट आई जस्ट वांट यू टू रीड। पुराने मेजर्स हैं तो उस पर क्वेश्चन आना अनलाइकली है, बट एटलीस्ट एक बार रीड कर लेना। अब आते हैं हजार्डस वेस्ट पे। हजार्डस वेस्ट कौन सा वेस्ट है जो सिग्निफिकेंट हार्म कर सकता है पब्लिक हेल्थ को। अगेन रीड द डॉक्यूमेंट अलॉन्ग साइड, बार बार बोलूंगा। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, देर आर वन ऑफ दीज 4 थिंग्स आर प्रेजेंट इन हजार्डस वेस्ट। क्या, या तो टॉक्सिक है, या तो इग्नाइटेबल है, या तो कोरोसिव है, या रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये तो आप पढ़ चुके हो पहले। यहाँ पर क्या चीज़ अब इमीडिएटली क्या याद आता है आपको, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये वैसे वेस्ट होते हैं जिनमें एनवायरमेंटल परसिस्टेंस ज़्यादा है, लॉन्ग रेंज इनका ग्लोबल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है, और बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है यार, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा और कहाँ हम फंसेंगे क्वेश्चन में। पढ़ आप लोगे, लिटरली कुछ नहीं है इसको पढ़ने में, कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। क्वेश्चन कहाँ बनेगा, क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि आपसे इनके बारे में पूछ लिया जाएगा, यार ये डीडीटी क्या होता है, एंडोसल्फान क्या, एंडोस ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं वो, पीएफएस के बारे में उन्होंने पूछा है, एंडोसल्फान के बारे में उन्होंने पूछा है। जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल क्या है, ठीक है, या डायोक्सिन्स क्या है। तो ये टर्म्स अब आपको याद करनी है, ठीक है। एंड यू हैव टू कीप एटलीस्ट 1 और 2 लाइंस इन माइंड। जैसे पीसीबीज, तो आपको पता होगा पीसीबी तो सर्किट बोर्ड में यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, और भाई ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, और ये शायद एक बारी में याद ना हो, बट ये 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन सही करने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे बिल्कुल रट जाने, बट इफ़ यू आर स्लाइटली बेटर देन अदर्स इट हेल्प्स, ठीक है। अब
सिमिलरली इन हजार्डस वेस्ट में एक चीज़ आती है ऑर्गेनोक्लोरीन्स। अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अगर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो विद क्लोरीन तो उसे कहेंगे ऑर्गेनोक्लोरीन, राइट। नाउ दे आर लिस्टेड एज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। इनके नाम हमें पता होने चाहिए। डीडीटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं। जैसे एंडोसल्फान है, एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन है, इंसेक्टिसाइड है। केरला में जब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था तो इसकी बायोमैग्निफिकेशन की वजह से टॉक्सिसिटी हो गई थी इन द सिटी ऑफ कसरगोड, एंड देयरफॉर इट वाज कॉल्ड द कसरगोड ट्रेजेडी। तो यहाँ पर इसको फिर बैन किया गया। लो पीपल वर बीइंग बॉर्न बॉर्न विद डिफॉर्म्ड लिम्स, मतलब उनके लिम्स खराब हैं, एंड लिम्स डिफॉर्म्ड इन द सेंस दैट दे वर ट्विस्टेड एंड दिस वे, मतलब इस टाइप की चीज़ थी, लाइक दे वर नॉट स्ट्रेट लिम्स बिकॉज ऑफ एंडोसल्फान बायोमैग्निफिकेशन इन चिल्ड्रन, राइट। सो देन दिस वाज बैंड। तो ये टॉक्सिक है, बायो अक्यूमुलेटिव है, राइट, और एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और न्यूरोटॉक्सिक है। देखो ये सब याद नहीं करना होता, ठीक है, ये आपको एक बार रीड करना होता है। याद क्या करना है कि एंडोसल्फान क्या है और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है और स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिस्टेड है। इन चीज़ों पे एमसीक्यू आने के चांस ज़्यादा हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि यार ये आ, सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करता है या कार्डियक सिस्टम को भी डैमेज करता है, क्योंकि ये बात प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है। यूपीएससी के लिए भी ये दिक्कत है। बट आपको क्या याद करना है कि यार ये एक ऑर्गेनोक्लोरीन है, ये मैंने देखा कि यार ये एक ऑर्गेनोक्लोरीन है और ये एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। सिमिलरली जैसे यहाँ पर अब बात है पर फ्लोरो एल्काइल एसिड, ठीक है। अब फ्लोरो एल्काइल मेरे को सुन के लग रहा है कि यार फ्लोरीन होगा इसमें ऑब्वियसली, राइट। तो देयर विल बी फ्लोरीन हेयर। हर केमिकल के बारे में दो तीन चीज़ें, पहले यूज़ कहाँ करते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज़ करते हैं। वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग्स में यूज़ करते हैं, ऑयल रेजिस्टेंट कोटिंग में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, फैब्रिक में, लेदर में, यहाँ सब यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या है ये, फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। एक इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हाँ यार ये हिमालयन ग्लेशियर्स में काफ़ी मिले हैं, ठीक है। अब इसको रेगुलेट करने के लिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के रूल्स हैं इंडिया में अंडर सेम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सारा कुछ रट लूंगा यहाँ पे, मैं कहता ये 7 पीओपी केमिकल्स इसमें दिए हुए हैं, 7 को एक बार रीड कर लेते हैं। अगर गलती से मुझे प्रीवियस में इस पर क्वेश्चन दिख गया, मुझे ये तो याद आ जाएगा कि ये पीओपी है। क्या क्या है, क्लोरोडिकोन, हेक्सा ब्रोमो बाइफेनाइल, कमर्शियल ऑक्टा बीडीई, कमर्शियल पेंटा बीडीई, पेंटा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडोडेकेन और हेक्सा क्लोरो ब्यूटाडाइन। आई नो डिफिकल्ट टू रिमेंबर, मुझे थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है 11th-12th की वजह से, तो मैं पढ़ पा रहा हूँ। कई लोग तो इसके नाम पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, मैंने केमिस्ट्री इतनी ढंग से नहीं पढ़ी होती 12th में, तो मैं भी नाम नहीं पढ़ पाता, डोंट वरी। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन, इतना याद होना कि ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है सफिशिएंट। जैसे टीएफएस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए आसपास की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अब पीएफएस के क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था कि भाई कहाँ मिलते हैं ये, तो भाई वाटर में मिलते हैं, कुकवेयर में मिलते हैं, क्लोथिंग में मिलते हैं, ट्रेन रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, फूड में मिल सकते हैं, ठीक है। अगेन ये फॉरएवर केमिकल्स हैं, डिग्रेड नहीं करते, ठीक है। पेपर स्ट्रॉज में भी ये पाए गए हैं, डिग्रेड नहीं करते, पीओपीज हैं, और क्या ह्यूमन को टॉक्सिक हैं, हाँ भाई बिल्कुल टॉक्सिक हैं। इस बात से वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है ईजिली। और जितने क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के हैं, ब्रॉड कवरेज इंपॉर्टेंट है यहाँ, इन डेप्थ नहीं है। तो रीड करो और इस चीज़ से आगे बढ़ो। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन हम पहले ही देख बात तो सुन चुके हैं इसकी। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, इट इज़ अबाउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। क्या बात करी गई है यहाँ पे, यहाँ पर वी हैव लिस्टेड इन स्टॉकहोम कन्वेंशन सर्टन अगेन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन ये कहती है कि इन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का जो यूज़ है उसको हमें कम करना है, इसको हमें वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस बेसिकली, कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट शुड नॉट कॉन्स्टेंटली बी प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। तो ये कन्वेंशन आई थी 2004 में और इंडिया ने रेटिफाई की थी इन 2006। तो पहले इन्होंने ये छः दे लिस्टेड दी 6
परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, जैसे ऑल्ड्रिन है, इतना याद करना बहुत है कि इंसेक्टिसाइड है, हेप्टाक्लोर है, हेक्साक्लोरो बेंजीन है, एंड्रिन है, पीसीबीज हैं, पीसीबीज हमने कई बार देख लिया, और डीडीटी है। इसके बाद कुछ और सब्सटेंसेस भी लिस्टेड थे, इसको रीड करना बस, ताकि जस्ट इन केस क्वेश्चन आ जाए इन पे तो हमें ये याद हो कि यार ये पीओपी है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और कन्वेंशन ऑन हजार्डस वेस्ट वाज बासल कन्वेंशन। बासल कन्वेंशन क्या कहती है कि जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है, हजार्डस वेस्ट की, वो नहीं होनी चाहिए। होता क्या था, हजार्डस वेस्ट जनरेट हुआ यूएसए में, डेवलप्ड कंट्री में, ये कहते थे यार हमें नहीं डिस्पोज करना, इसको बांग्लादेश भेज दो, अंडर डेवलप्ड कंट्री बांग्लादेश में भेज दो। जब बांग्लादेश में ये जाएगा तो वहाँ पर इसको नॉन प्रॉपर मेथड से डिस्पोज किया जाएगा, यहाँ पर डिजीजेस होंगी, लोग हार्म होंगे, बट यूएस वाले कहेंगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, एंड बांग्लादेश वाले कहेंगे हाँ हमें डॉलर्स मिल रहे हैं। राइट, तो दिस ट्रेंड वॉज हैपनिंग। राइट, तो फिर ये चीज़ डिसाइड हुई कि ये जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है, ट्रांस बाउंड्री मीन्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री, ये जो हजार्डस वेस्ट मूव हो रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। उसके लिए आई बासल कन्वेंशन। बासल कन्वेंशन ने क्या बोला कि भाई हम ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रोकेंगे, ठीक है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इसको नहीं भेजेंगे, राइट, और एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट हम करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। ऑल्दो बासल कन्वेंशन में एक प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर है, बट इसमें रेगुलेशन है, टोटल बैन नहीं है इस मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन का। ठीक है, अब इसमें ये तो बोला है कि आप एंटार्क्टिका नहीं भेज सकते अपना हजार्डस वेस्ट, वो तो एक्सप्रेसली भेजा है, बट ब्लैंकेट बैन नहीं है। राइट, स्टिल सम थिंग्स आर अलाउड। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट इसके स्कोप के बाहर हैं। ठीक है, और ये रिसाइकलिंग लूप होल तो बहुत ही फनी चीज़ है। इसमें क्या बोला गया कि अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री हो, अब मान लो यूएसए को अपना हजार्डस वेस्ट भेजना है, तो क्या करते हैं, उस पर लिख देते हैं दिस वेस्ट इज मेंट टू बी रिसाइकल्ड। आपने लिख दिया दिस वेस्ट इज मेंट टू बी रिसाइकल्ड। अब आप भेज सकते हो किसी एलडीसी में इसको, और वहां पर कौन चेक कर रहा है इसको रिसाइकल किया या नहीं किया। तो दिस वॉज अ लूप होल दैट वॉज देयर। ठीक है, अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शिप रिसाइकलिंग, इसमें इंडिया एक मेजर पावर है। ओल्ड शिप से जो थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता है, सैल्वेजेबल मटेरियल, उसको निकालना और उसको यूज करना, दैट इज शिप रिसाइकलिंग। नाउ दैट इज समथिंग विच हैपन्स अ लॉट इन इंडिया, बट द फैक्ट इज हियर इज कि इसमें काफ़ी हजार्डस वेस्ट भी निकलता है। तो इंडिया इज़ अ ह्यूज हब ऑफ शिप ब्रेकिंग कहते हैं इसको, शिप ब्रेकिंग, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ अ हजार्डस वेस्ट प्रॉब्लम। राइट, अब जब ये बासल कन्वेंशन आई थी, इट वाज देन अमेंडेड। एक बार पहले आई 1992 में, फिर इसको अमेंड किया गया 1995 में। ठीक है, इसमें बोला था कि जो हजार्डस वेस्ट का एक्सपोर्ट है उसको कंप्लीटली बैन कर दो, देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन ऑन एक्सपोर्टिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट। ठीक है, और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अपना पोल्यूशन, जैसे यहाँ पहले जो ओरिजिनल कन्वेंशन थी इसमें तो टोटल बैन नहीं था। फिर हमने बोला कि नहीं यार हम इसको कम्प्लीटली बैन कर देंगे, ऐसी एक अमेंडमेंट आई, बट मोस्ट कंट्रीज डिड नॉट अग्री टू इट, इट हैज़ एंटर्ड इनटू फोर्स ओनली ऑन दिस डे। बट इंडिया ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दे हैव नॉट रैटिफाइड दिस बैन, दे हैव नॉट अग्रीड टू दिस बैन। वाई? इंडिया को तो लगता है यार कि जो शिप रिसाइकलिंग की प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। टेक्निकली अ शिप इज ऑल्सो हजार्डस वेस्ट, उसमें है तो सही। अभी क्या होता है कि लेट्स से जापान में कोई ओल्ड शिप है, उसको अगर उन्हें ब्रेक करना है, उसमें से सैल्वेज करना है, जो उसके यूजेबल पार्ट्स हैं उनको निकालना है, तो जापान सेंड्स दैट शिप टू इंडिया। इंडिया में वो शिप ब्रेक किया जाता है, और उसमें से जो यूजफुल पार्ट्स हैं दैट आर सेग्रीगेटेड एंड सेंड बैक टू जापान, और जो हजार्डस वेस्ट है उसको हम डिस्पोज करते हैं। तो इंडिया कहता है इसको रेगुलेट कर लो, अगर आप कंप्लीटली बैन कर दोगे तो ये शिप्स भी इंडिया नहीं आ पाएंगे, और इंडिया तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर शिप बिल्डिंग की। ठीक है, तो ये एक इशू था। अब सिमिलर कन्वेंशन हियर इज रॉटरडैम कन्वेंशन, दीज थ्री कन्वेंशंस आर रिलेटेड एंड आई टेल यू हाउ। रॉटरडैम कन्वेंशन में क्या है, इट इज फॉर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हजार्डस नॉट वेस्ट, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को, तो आप प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लोगे।
वाई सी, मान लो दिस इज कंट्री ए एंड दिस इज गोइंग टू एक्सपोर्ट सम हजार्डस केमिकल्स टू कंट्री बी। तो पहले कंट्री बी को आप सारी इंफॉर्मेशन दो, यार किस टाइप का हजार्डस केमिकल है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, सेफ हैंडलिंग इसकी कैसे करनी है वगैरह। और फिर ये कंट्री भी प्रॉपरली डिसाइड करे कि हमें ये इंपोर्ट करना भी है या नहीं। एंड बिफोर दिस एक्सपोर्ट हैपन्स, बिफोर दिस इंपोर्ट हैपन्स, ए एक्सपोर्टर है बी इंपोर्टर है, यू नीड टू टेक द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ कंट्री बी। ठीक है, दिस इज द रॉटरडैम कन्वेंशन। अब हमने तीन साथ में क्यों पढ़ी, बिकॉज दीज आर थ्री रिलेटेड कन्वेंशन। इन तीनों की मीटिंग्स जॉइंट साथ में होती हैं, एज यू कैन अंडरस्टैंड। बासल कन्वेंशन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन पीओपीज, एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन, forgive me, Stockholm Convention on POPs and Rotterdam Convention on ट्रेड ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। राइट, इनकी साथ में कन्वेंशन होती है, इनकी साथ में सीओपी होती है। तो जैसे स्टॉकहोम की कॉप 12 थी, रॉटरडैम की कॉप 12 थी और बासल की कॉप 17 थी, बट देयर वाज अ जॉइंट मीटिंग। और थीम क्या था, आजकल यूपीएससी थीम पूछने लगा है। थीम क्या था, मेकिंग द विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। सेंस भी बना रहा है। राइट, तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखी गई। बासल कन्वेंशन ने पहले तो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया और टेक्सटाइल वेस्ट के बारे में बात करी, तो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। रॉटरडैम कन्वेंशन ने क्या किया इस बार, इन्होंने दो चीज़ें करी हैं, एक तो कार्बोसल्फान और एक फेंथियन, इन दोनों को डाला है इन एनेक्सर 3 ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन में एनेक्स 1 में जो चीज़ आती है, नीचे आएगा ये, एनेक्स 1 में जो चीज़ आती है वो बैंड होती है। एनेक्स 3 में जो चीज़ आती है दैट रिक्वायर्स पीआईसी प्रोसीजर, तो वेरियस लिस्ट हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट येस, दीज टू हैव बीन एडेड टू द रॉटरडैम कन्वेंशन। तो कार्बोसल्फान ये भी एक इंसेक्टिसाइड है और फेंथियन ये भी एक इंसेक्टिसाइड है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। लास्टली, स्टॉकहोम कन्वेंशन ने क्या किया है, हैज एडेड सर्टन थिंग्स अगेन टू इट्स एनेक्शर्स। स्टॉकहोम कन्वेंशन के एनेक्शर में है, मतलब क्या होगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होगा। तो स्टॉकहोम, ये हम करंट अफेयर्स में भी देखेंगे, इसलिए आई एम जस्ट रीडिंग ऊपर ऊपर से अभी के लिए। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या चीज़ है, इन्होंने क्लोरपायरिफॉस जो एक इंसेक्टिसाइड है उसको एनेक्स ए में डाला है, जिसका मतलब है इसको एलिमिनेट करना है। एमसीसीपी जो एक प्लास्टिसाइजर है, उसको बोला है कि इसको एलिमिनेट करना है। एलसीपीएफसीए, इसको बोला है कि इसको एलिमिनेट करना है। और UV328, ठीक है, ये एक यूवी अब्जॉर्बर है। इसमें बोला है कि हाँ, अगर आप पहले से इसको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की कैटेगरी में डाल रखा था, अपने एनेक्सर में डाल रखा था, बट इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आप इसे एक सर्टन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जैसे आप एयरक्राफ्ट्स के लिए यूज कर रहे हो, तो ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द रूल्स ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, अब एक और रिलेटेड कन्वेंशन यहाँ पर है, हांगकांग कन्वेंशन। हांगकांग कन्वेंशन इज फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। ठीक है, आईएमओ एंड आईएलओ ने साथ में डेवलप करी है, ठीक है, ताकि बेटर ग्रीन रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स हो सके। इससे ही रेटिफाई करके और इसको समझ के इंडिया ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 अडॉप्ट किया था, बिकॉज हमारे यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर बोला था कि सिर्फ ऑथराइज फैसिलिटी में ये चीज़ होगी, हजार्डस मटेरियल्स को यूज़ नहीं किया जाएगा। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया था, एक नेशनल अथॉरिटी बनाई थी, ताकि इंडस्ट्री चलती रहे बट रेगुलेटेड रहे। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स भी हैं हमारे पास, और वो हैं हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग रूल्स ऑफ 2016। ठीक है, ये रूल्स भी किसके अंडर बने होंगे, ऑफ कोर्स आर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन विच इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि हजार्डस वेस्ट को सेपरेट करो अदर वेस्ट से। ठीक है, और हजार्डस वेस्ट के लिए एक ये 6 स्टेप हायरार्की, 5 स्टेप हायरार्की दी है कि सबसे पहले तो प्रिवेंट करो कि हजार्डस वेस्ट ना बने, तो सबसे बढ़िया है। देन यू मिनिमाइज इट एंड रीयूज इट। वो भी नहीं हो पा रहा तो रिसाइकल करो, वो भी नहीं हो पा रहा तो रिकवर करके कुछ यूटिलाइज करो। डिस्पोजल लास्ट स्टेप है, ये नहीं कि हजार्डस वेस्ट बना और इसको सीधा डिस्पोज कर दिया। ट्राई टू सैल्वेज इट फर्स्ट, दिस वाज द आइडिया, दिस वाज द आइडिया। इसमें ये भी बोला गया कि फाइनल डिस्पोजल के लिए आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। राइट, कि यू आर इम्पोर्टिंग हजार्डस वेस्ट, दैट इज फाइन। आप रिसाइकलिंग के लिए कर रहे हो, आप शिप बिल्डिंग के लिए कर रहे हो, शिप ब्रेकिंग के लिए कर रहे हो, दिस इज फाइन। बट आप ये नहीं कर सकते कि हम यूएसए का हजार्डस वेस्ट इंपोर्ट कर लेते हैं और हम इंडिया में उसको डंप कर देंगे, दिस इज नॉट अलाउड। और इसमें कुछ बात भी कही गई कि इन वेस्ट को
आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यूटीज़ किसकी हैं यहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, बिकॉज वेस्ट हैंडलिंग वैसे भी अर्बन लोकल बॉडीज़ का काम है, तो उसके हायर लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर ड्यूटीज़ दी गई हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ देयर वर सम न्यू रूल्स दैट हैव आल्सो कम ऑन हजार्डस वेस्ट, which are the amendment rules to these hazardous waste rules in 2025। अब यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बात की गई है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज ईपीआर। ईपीआर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फिर इन हजार्डस वेस्ट रूल्स को समझेंगे। देखो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं उसमें प्लीज अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लीज अगेन आई एम सेइंग दिस नाउ फॉर प्रॉब्ली द थर्ड टाइम, शायद बोर हो गए हो आप सुन के। प्लीज रीड दिस बाय योर सेल्फ। आइडली आई शुड नॉट टेक दिस क्लास, जस्ट रीड दिस बाय योर सेल्फ वंस। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, राइट। आई एम जस्ट डूइंग दिस टू एक्सप्लेन एंड मेक रीडिंग फॉर यू ईजियर, ठीक है। तो हम यहाँ से ये दो रूल्स हमें और पढ़ने हैं, हजार्डस वेस्ट रूल्स और ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट रूल्स। दोनों सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर हम आगे स्टील स्क्रैप पे आते हैं। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर आफ्टर वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईपीआर, ठीक है। तो अभी एक बार क्या करते हैं, पहले एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इस चीज़ को समझते हैं। तो लेट्स extended producer responsibility basically means that, let's say there is one producer, right? One second. So there is a producer who is, let's say, producing some plastic. So it is now, let's say I am the producer and I produce plastic, okay। अब ये प्लास्टिक मैंने प्रोड्यूस कर दिया, इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसके बाद कोई कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा। लेट्स से आपने प्लास्टिक बैग खरीदा और फिर आपने इसको डिस्पोज कर दिया। अब इसका जो ये डिस्पोजल है ये प्रॉपर होना चाहिए। ये प्रॉपर डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Extended producer responsibility means that throughout the cycle, the responsibility lies with the producer. It is a modified form, or you can say an application of polluter pays, that since you are the one who are producing the plastic, you are the one who will be responsible for it. This is the idea behind extended producer responsibility, right? And this is the idea that governs a lot of our rules. ये टर्म आपको जहाँ जहाँ मिले आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, राइट। तो हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, राइट। वी वर रीडिंग द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो आप डॉक्यूमेंट साथ में खोल लेना, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू हियर। हजार्डस वेस्ट रूल्स जो आए हैं 2025 में आए हैं, इसमें इन्होंने क्या बोला है, देयर विल बी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। एंड जो नॉन फेरस मेटल्स हैं, यानी कि जो आयरन के अलावा मेटल्स हैं, उनका जो स्क्रैप होता है, जो वेस्ट होता है, उसमें इन्होंने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी है। दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड ईपीआर सर्टिफिकेट्स। जैसे हमारे पीएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो आप ईपीआर सर्टिफिकेट्स जो ज़्यादा कर रहा है प्रोड्यूसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसे सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हो। और एक रिसाइकलिंग टारगेट भी दिया है, वो 75% तक का टारगेट है रिसाइकलिंग का बाय द ईयर 2033, ओके। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे सिगरेट या बीड़ी के बट्स होते हैं, जैसे समबडी स्मोक्स अ सिगरेट, एंड में जो बट बच जाता है, उसके डिस्पोजल के लिए कोई डेडिकेटेड डिस्पोजल रूल्स इंडिया में नहीं है। इवन दो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसके लिए ऑर्डर दिया हुआ है कि सेलुलोस एसिटेट होता है इन बट्स में, जो सेलुलोस एसिटेट इज प्रेजेंट, टिल देर इज नो रूल एज सच। इसके साथ एक और कनेक्टेड रूल्स जो हमें पढ़ने थे, जो यहीं पे दिए हुए हैं, तो यहाँ वो सिगरेट बीडीज वाला पॉइंट लिखा है। देन वी हैड द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड साइट रूल्स। इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन रूल्स में बेसिकली इन्होंने कहा है दैट जो हजार्डस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, राइट, ये अगर आप एक साइट पे डालते हो और वो साइट कंटामिनेट हो जाती है, कोई लैंडफिल है, कोई लैंड साइट है, वो कंटामिनेट हो जाती है, तो उसकी कंटामिनेशन को ये कवर करते हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या होगा कि पहले आप ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। फिर SPCB जो है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट विल फॉर्म द इंस्पेक्शन एंड असेसमेंट। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा इसके लिए। द पोल्यूटर विल बी आइडेंटिफाइड एंड उस पर ही लाइबिलिटी लगी जाएगी। तो अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ पोल्यूटर पेज, राइट। ये चीज़ यहाँ पर एज इट इज़ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैड टू सी वाज स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग। तो स्टील स्क्रैप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, समझने की कोशिश करते हैं। तो द थिंग हियर इज दैट हाउ डू यू प्रोड्यूस स्टील। स्टील प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। स्टील में आयरन होता है और कार्बन होता है।
तो एक तरीका तो है कि आप पहले ही नया स्टील बना रहे हो, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर मेकिंग स्टील, इट्स कॉल्ड वर्जिन स्टील, राइट। इसमें है बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस मेथड, BOF मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेथड। द अदर मेथड इज कि आपने स्टील बनाया, अब मान लो आपने स्टील किसी कार में यूज़ किया, अब कार जो है वो ख़राब हो गई या पुरानी हो गई, अब आपने इसको डिस्पोज कर दिया, आपने कहा मुझे नहीं चाहिए ये, गार्बेज डंप में चली गई। अब गार्बेज डंप तो नहीं, मतलब बेसिकली स्क्रैप डीलरशिप के पास चली गई कि मुझे कार नहीं चाहिए, यूज्ड है, किसी को नहीं खरीदनी, सेकंड हैंड भी हो गई, थर्ड हैंड भी हो गई, अब किसी को यूज़ नहीं करनी। अब इस कार में से जो स्टील था वो निकाला जाएगा, दैट स्टील विल बी टेकन आउट, दिस विल बी कॉल्ड स्टील स्क्रैप, और इससे भी दोबारा से फ्रेश स्टील बनाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट फॉर सेकेंडरी स्टील, एंड इट इज़ जस्ट एज गुड। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी स्टील कुछ खराब है, इट इज़ जस्ट एज गुड, ठीक है। बट आप ये देख रहे हो जो सेकेंडरी स्टील वाला आइडिया ये बेटर है, इसमें एक तो आप फ्रेश आयरन और कोल यूज़ नहीं कर रहे हो, दूसरा इट गिव्स अस द आइडिया दैट यू प्रोड्यूस स्टील, यू यूज्ड इट, एंड देन यू आर अगेन प्रोड्यूसिंग स्टील। तो आप ये देख सकते हो दिस इज लिंक टू द आइडिया ऑफ सर्कुलर इकॉनमी, ठीक है। तो जो हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी है उसमें ये बात करी है कि सर्कुलर इकॉनमी को प्रमोट करना है, एंड ये भी बोला है कि जो ये बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस मेथड है प्राइमरी वर्जिन स्टील बनाने का, इसमें भी हम स्टील स्क्रैप यूज़ करेंगे, राइट। एंड विच इज़ द मिनिस्ट्री, ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैंडल्स इट। तो हमारी एक स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी आई थी 2019 में, राइट। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था यार हम डायरेक्टली स्टील स्क्रैपिंग के एजेंट्स नहीं बनेंगे, वी विल एक्ट एज एन एनेबलर, बट जो स्क्रैप सेंटर्स हैं उनको एक गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी, वो प्राइवेट हो सकते हैं, वी विल बेसिकली गिव द गाइडलाइन, दिस वॉज द आइडिया। अब स्क्रैप की भी कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं, होम में बना तो होम स्क्रैप, एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट हुआ, जैसे व्हीकल में आपको कह रहा था व्हीकल की एंड ऑफ लाइफ हो गई तो व्हीकल स्क्रैप। अगर स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ स्टील निकल जाए, जैसे अब आपको एक ब्लॉक ऑफ स्टील मिला, आपने इससे कार का शैसी बनाया, कुछ स्टील वेस्ट हो गया, दैट विल बी कॉल्ड इंडस्ट्रियल स्क्रैप या न्यू स्क्रैप एक्सेट्रा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज 1 टन ऑफ स्क्रैप अगर आपने यूज़ कर लिया अच्छे से, तो उससे आप आयरन ओर भी बचाते हो, कोल भी बचाते हो, लाइमस्टोन भी बचाते हो। और ये जो EAF वाला रूट है, सेकेंडरी स्टील वाला रूट है, इसमें एनर्जी कंजम्पशन भी कम होती है, सो दिस इज ओवरऑल अ मच बेटर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील। अब यहाँ आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर स्टील स्क्रैपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, इसके फीचर्स एक्सेट्रा दिए हैं। देन देर इज दिस टेबल ऑन हैवी मेटल पॉल्यूशन। यार ये टेबल याद करना है, आई नो इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, कैसे याद करना है मैं बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे लेड की बात की हुई है, राइट। तो लेड के सोर्सेज आपको पता है, यहाँ पे सोर्सेज और कुछ एक आधा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एल्जाइमर्स डिजीज या इस टाइप का कुछ बोर्ड में लिखा देखते हो तो देख सकते हो, ये जो टेबल है दिस यू हैव टू रिमेंबर। जैसे मरकरी पे क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल्ड माइनिंग से मरकरी निकलता है या नहीं। अब आई नो ये क्वेश्चन ऐसे तो किसी भी चीज़ से पूछ लेंगे, तो आई हैव कवर्ड दोज मेटल्स जो ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं या जिन पे क्वेश्चन आते हैं, राइट। दीज आर द थिंग्स आई हैव कवर्ड, बट येस इट इज़ इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कवर दिस, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। इसको प्लीज़ रीड करना। जैसे मर्करी से मीना मार्टा डिजीज़ होती है, राइट, तो यहाँ पर आपको मीना मार्टा डिजीज़ लिखी दिख जाएगी। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट this is something that you should try and cover as much as possible. अब now let us come to the next topic which is noise pollution in India। यहाँ पे हम जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा noise pollution। अब नॉइज़ पोल्यूशन की यार अगर हम बात करें तो देखो नॉइज़ पोल्यूशन में सबसे पहले तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसमें कुछ ही चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। पहले तो इसके नॉइज़ पोल्यूशन के रूल्स हैं, दीज रूल्स आर अंडर विच एक्ट, दीज रूल्स आर अंडर ऑफ कोर्स आर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड क्या है, मतलब व्हाट इज़ दी अलाउड अमाउंट ऑफ नॉइज। तो इसका आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ये रहा कि क्या स्टैंडर्ड है, कि कितनी लिमिट है, इसके ऊपर आप क्रॉस नहीं कर सकते। डेसिबल में मेजर होती है, डीबी में, राइट। तो हर एरिया के लिए अलग होता है, ये आपको याद करना है। और तीसरा कि नाइट टाइम में रिस्ट्रिक्शन होती है, डे टाइम की अलग होती है, नाइट टाइम की अलग होती है। तो आप नाइट टाइम को डिफाइन कैसे करते हो, तो 10 PM to 6 AM नाइट टाइम डिफाइंड होता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार लाउड स्पीकर्स अगर आपके रेजिडेंस में बज रहे हैं या आसपास हो रहे हैं तो हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि यार 10 बजे के बाद नहीं बजने देंगे, बिकॉज इट इज़ डिफाइंड इन द नॉइज रूल। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये जो टेबल है, इस टेबल में आपने ये प्लास्टिक बॉटल्स पे चीज़ें देखी होंगी,
लोगों को पहले लगता था कि इसका मतलब है कि ये रिसाइक्लेबल है, बट दिस इज एक्चुअली नॉट रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। ये अलग अलग टाइप का प्लास्टिक है, राइट। ये पेट है, HDPE है, PVC है। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दीज नेम्स। ये नाम आपको पता होने चाहिए, चाहे आप 1 to 7 याद मत करो, बट एटलीस्ट एक ब्रॉडली इस टेबल का एक आइडिया ले लो, राइट। यू शुड गेट एन आइडिया अबाउट दिस टेबल कि हाँ यार इसमें क्या क्या बातें करी हुई हैं, ठीक है। देन द अदर थिंग दैट यू नीड टू सी हियर इज कि यार यहाँ पर किस लेवल की रिसाइक्लेबिलिटी है, राइट। ये जो 6 चीज़ें हैं, इन पे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दिस टेबल आई वुड वांट यू टू रिमेंबर, एटलीस्ट इनका रेजन कोड देख लो और इनका नाम देख लो, और वेदर दे आर रिसाइक्लेबल और नॉट, ये हमें पता होना चाहिए। और जहाँ पर ये स्कल वाला साइन है, इट मीन्स इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी टॉक्सिक। तो ये चीज़ें हमें फिर भी देखनी होंगी। अब UNEP की ये स्टेटस रिपोर्ट है, तो ये कह रहा है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे 5 सितंबर को, टीचर्स डे पे आ गया था 2025। ओवरशूट डे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। We have produced more plastic than the earth has the ability to absorb in that year. So this is something we have seen. अब प्लास्टिक पोल्यूशन में इसके अलावा देर आर सम टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टर्म होती है माइक्रो प्लास्टिक। अब माइक्रो प्लास्टिक का क्या मतलब है? माइक्रो प्लास्टिक इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 5 मिलीमीटर। इसके बीच में जो होता है वो माइक्रो प्लास्टिक है। दो तरह के होते हैं, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी होता है जो वो डायरेक्टली रिलीज होता है, और सेकेंडरी होता है कि कुछ चीज़ों ने रिएक्ट करके माइक्रोप्लास्टिक बना दिया, ठीक है। अब माइक्रोप्लास्टिक्स काफ़ी डेंजरस होते हैं। पहले इट वॉज अज्यूम कि ब्लड स्ट्रीम एंटर नहीं कर सकते, मतलब हमारे ब्लड में नहीं एंटर कर सकते, बट बाद में एक स्टडी हुई थी तो पता चला था येस दे कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम, दे कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। देन देर इज अ टर्म कॉल्ड माइक्रोबीड। माइक्रोबीड होता है बिटवीन 0.5 माइक्रोमीटर्स एंड 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? जनरली आपको पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मिलते हैं, जैसे टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, उसमें ये काफ़ी प्रेजेंट होते हैं। एंड देन देर आर नैनो प्लास्टिक्स। नैनो प्लास्टिक्स आर नैनो साइज रेंज, तो 1 नैनोमीटर से कम, या 1 नैनोमीटर के आस 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर की रेंज में। एंड दिस रेंज ऑफ कोर्स इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, बिकॉज ये दे कैन डायरेक्टली एंटर आर ब्लड स्ट्रीम। अब जो मैंने आपको ऊपर प्लास्टिक्स बताए थे उसके बारे में क्या जानना है, तो फर्स्ट प्लास्टिक इज पेट। पेट की हमें पता है, पेट बॉटल्स होती हैं। दिस इज पॉलीथीन टेरेप्थैलेट, फूड एंड बेवरेज के लिए यूज करते हैं, एंड दिस इज वाइडली रिसाइक्लेबल। देन सेकंड इज पॉलीथीन, पॉलीइथीन और पॉलीइथाइलिन, ठीक है। ये पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं हमें पता है, बट ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ठीक है। रिसाइकलिंग में यूज कर सकते हैं बट इट्स नॉट बायोडिग्रेडेबल। देन देर इज पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन का मोनोमर है, फूड पैकेजिंग में यूज होता है। अगर आपको इतना पता है तो इतना बहुत है। देन देर आर थैलेट्स। थैलेट्स आर प्लास्टिसाइजर्स। ये क्या करते हैं कि जो PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें इनको ऐड करता है, ऐड किया जाता है ताकि इसको सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाया जा सके, राइट। फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं, मेडिसिनल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। सो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। नीचे अगर आप डॉक्यूमेंट में जाओगे तो यहाँ पर ये माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में लिखा है। जस्ट रीड दिस वंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। ये पेट है, ये पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन, थैलेट्स, PB80। दिस इज इन द न्यूज़ दिस टाइम, तो इसको एक बार पढ़ लेना है, किस काम में आता है। देन यू विल सी सम इम्पैक्ट। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे डायोक्सिन। डायोक्सिन एक काफ़ी टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है, ये गैस फॉर्म में होता है। इट इज़ अ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ इन गैस फॉर्म, और ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, राइट। तो दिस इज अगेन समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये जो यहाँ पर टर्म्स लिखी हैं, जैसे डायरेक्शन एंड फ्यूरान यहाँ पे लिखा है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि फ्यूरान एक प्लास्टिक पोल्यूटेंट है और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप कहोगे सर ये बहुत मुश्किल है याद करना, तो जैसे बिस्फेनॉल यहाँ लिखा है ना, ये पॉलीकार्बोनेट से आता है, ये PYQ है, एंड दैट इज वाई वी हैव टू रीड दीज थिंग्स। नाउ जैसे प्लास्टिक की हमने वेस्ट पढ़े, तो प्लास्टिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू रीड। तो प्लास्टिक मैनेजमेंट को हमें देखें तो प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स हैं इंडिया में, राइट। नाउ व्हाट डू दीज प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स से? प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स मॉडिफाई हुए थे इन 2024। तो क्या बोला गया था प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स में? पहले तो यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी, ये EPR का फ्रेमवर्क बनाया गया था, ठीक है। फिर यहाँ क्या बताया गया था कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसको हम तभी बायोडिग्रेडेबल मानेंगे अगर वो कोई माइक्रो प्लास्टिक पीछे नहीं छोड़ेगा तो। देन देर आर लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू लेबल कि कितना प्लास्टिक कॉन्सेंट आपने कंटेंट इसमें आपने रिसाइकिल करके डाला है।
and some exemptions were given for MSME. ठीक है, दिस इज द मेन थिंग. अब EPR तो हम पढ़ चुके हैं, वी अंडरस्टूड. इसके अलावा इंडिया ने प्लास्टिक्स के लिए क्या किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन किया है. ठीक है, और उसमें कुछ आइटम्स आइडेंटिफाई करे, जैसे पॉलिस्टाइरीन का जो थर्मोकॉल होता है डेकोरेशन के लिए, या प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी, प्लास्टिक स्टिक्स के ईयरबड्स जो होते हैं उनको बैन करा था, राइट. एंड साथ में मैंडेटरी रिसाइकलिंग टारगेट्स दिए थे कि फॉर एवरी टाइप ऑफ प्लास्टिक यू हैव दिस रिसाइकलिंग टारगेट, इतना रिसाइकल आपको करना ही करना है. दिस वॉज द आइडिया. अब देर आर सम ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑल्सो ऑन प्लास्टिक्स, जैसे एक ग्लो लिटर प्रोजेक्ट है, वो IMO और FAO का है, या एक मार्पॉल है, मार्पॉल हम पढ़ चुके हैं, राइट. देन देर इज UN प्लास्टिक्स कलेक्टिव. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्लोबल प्लास्टिक्स पोल्यूशन ट्रीटी है. अब ये क्या है, ये एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली के रेजोल्यूशन से बना था, UNEA के रेजोल्यूशन से बना था. और इसमें बोला था कि हम प्लास्टिक प्रोडक्शन को, जो प्लास्टिक प्रोडक्शन होती है उसको कम करेंगे और एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बनाएंगे. ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंट्रीज लाइक इंडिया वुड से कि यार आप हम पे क्यों ये रूल लगा रहे हो, इतने टाइम से जो वेस्टर्न नेशंस हैं दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक. तो यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज बना था, जिसमें चाइना था, इंडिया था, सऊदी अरेबिया था, ईरान था. एंड ऑल ऑफ देम सेड दैट वी विल नॉट अग्री टू दीज प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शंस. जो हाई एम्बिशन कोalition है, तो ये लाइक माइंडेड कंट्रीज बनी थी. उल्टे साइड पे बना था एक हाई एम्बिशन कोalition, इसमें EU कंट्रीज थी. और इन्होंने बोला था कि प्रोडक्शन को लिमिट करेंगे, प्रोडक्शन कैप्स लगाएंगे, right? But still there was no agreement that was reached. So this is basically all about plastic that we have to study. Again, everything is given in the document. I am just giving you an overview ताकि आप पढ़ पाओ आसानी से. Then next thing that we have to read is e-waste. अब e-waste समझने की कोशिश करो. अगर e-waste को ढंग से स्टोर किया जाए तो उसमें कोई डेंजर नहीं होता, बट अगर इट इज स्टोर्ड बैडली देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, अब ई-वेस्ट में हमें पहले क्या पढ़ना है कि कौन कौन से मेटल्स हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. What are the metals and components in e-waste? Again, I know ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, but questions do come. तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लिथियम होता है क्या ई-वेस्ट में. हाँ बिल्कुल होता है. लेकिन क्या यूरेनियम होगा? यूरेनियम नहीं होगा. क्या थैलेट्स होंगे? PVC होगा? बिल्कुल. क्या सिल्वर होता है? बिल्कुल होता है. क्या कोबाल्ट होता है? होता है. और इनके यूजेस क्या हैं? दीज थिंग्स आर गिवन हेयर इन अ लिस्ट. यहाँ पर एक लिस्ट दी है. सेकेंड, yeah, this list of various things that are present and a list of e-waste components is given. This is something that you have to read. अब इसमें अगर आप आगे देखोगे तो ग्लोबल ई-वेस्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स इट हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, राइट. 82% सर्ज हुआ है सिंस 2010 वगैरह. दिस इज जस्ट डेटा दैट यू कैन यूज़ फॉर मेंस. प्री के लिए इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दे विल नॉट आस्क दिस डेटा, एंड जो रिसेंट डेटा होगा मैं आपको करंट अफेयर्स में बता दूंगा. इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ई-वेस्ट प्रोड्यूसर बन गया. दिस इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. बट जो हमारा प्रोसेसिंग रेट है वो भी काफ़ी हाई है. 70.7% कवरेज है हमारी, एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रिटी हाई. अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अगर हम देखें तो ये 2016 में आए थे, और यहाँ पर सबसे पहली बार ई वेस्ट में ही हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म को यूज़ किया था. ठीक है, अब आपको इसका मतलब तो पता ही है व्हाट इट मीन्स. और इसके लिए इन्होंने एक डिपॉजिट रिफंड स्कीम आइडिया दिया था. डिपॉजिट रिफंड स्कीम क्या है, दैट लेट्स से आई एम गोइंग टू बाय सम इलेक्ट्रॉनिक्स. मान लीजिए मैंने सैमसंग का फ़ोन ख़रीदा, मैं जाऊँ और जो ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके लिए मान लो वो 50,000 का फ़ोन है, तो मैं 50,000 रुपीज़ दूँ, प्लस आई शुड गिव 5,000 रुपीज़ एज अ डिपॉजिट टू द प्रोड्यूसर. अब जब मैं इस फ़ोन को वापस रिसाइकल करूँगा या जो भी करूँगा, व्हेन आई नाउ आई फाइनली गॉट टू डिस्पोज दिस फ़ोन, हो सकता है मैं आगे किसी को सेल कर दूँ, फिर आगे कर दूँ, तो वो चीज़ कंटिन्यू होगी. जब ये फाइनल डिस्पोज हो रहा होगा, देन दिस पर्सन हु फाइनली हैज़ द फ़ोन कि अब मुझे यूज़ नहीं करना, पुराना हो गया, दे कैन गो टू द प्रोड्यूसर, रिटर्न द फ़ोन, और इनको ये 5,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा. सो यू डू अ डिपॉजिट बट यू गेट अ रिफंड इन द एंड. दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड दिस. इसके बाद हमारे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए 2022 के. वहाँ पर अगेन रिसाइकलिंग टारगेट्स को बेटर किया और EPR सर्टिफिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया. तो जैसे PSL सर्टिफिकेट्स हमने ऊपर देखा, सिमिलरली ई वेस्ट सर्टिफिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया. नाउ दिस इज़ द लास्ट सेक्शन. आई वुड से इट्स फेयरली इंपॉर्टेंट. ये सेक्शन आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये सेक्शन आप अलग से पढ़ लेना. लाइक डोंट रीड इट इन कंजंक्शन विद द डॉक्यूमेंट. जो आपने अभी तक पढ़ा है
उसको आप वहाँ पे स्टिक करो। बट ये जो लास्ट सेक्शन है ये हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज का है, इससे भी एक आधा क्वेश्चन आता है, राइट। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज बेसिकली देर आर सम इंडस्ट्रीज दैट आर ग्रॉसली पोल्यूटिंग, राइट, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, राइट। उनको हमने यहाँ पर डील किया है कि इस इंडस्ट्री से क्या टाइप का पोल्यूशन आता है। मोस्टली ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है कि इनसे ये पोल्यूटेंट निकलता है या नहीं, या ये चीज़ इसमें यूज़ होती है या नहीं। यहाँ पर फॉर डिटेलिंग इन द डॉक्यूमेंट आई हैव गिवन द एंटायर प्रोसेस। ये थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट की प्रोसेस क्या है, फिर इसमें पॉल्यूशन कैसे होता है और क्या क्या रिलीज करते हैं। बट आपको मैं रेकमेंड करूँगा दैट यू जस्ट नीड टू रीड, जैसा थर्मल पावर प्लांट एक पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये इसके पोल्यूटेंट्स हैं। सिमिलरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ पर उसकी प्रोसेस दी हुई है कि पिग आयरन बनता है, आयरन ओर बनता है, स्लैग बनता है, बट स्लैग इज द पोल्यूटेंट। तो स्लैग क्या होता है ये हमें पढ़ना है। और ये एयर पोल्यूशन और मैग्नेटाइड पोल्यूशन करते हैं, जैसे मैग्नेटाइड पोल्यूशन पे PYQ आ चुका है, राइट। फिर सीमेंट इंडस्ट्री है, प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। एमिशंस एंड एफ्लुएंट्स पढ़ने की जरूरत है। और जो स्लैग होता है वो क्या होता है सीमेंट इंडस्ट्री से, सीमेंट से क्या क्या पोल्यूटेंट्स आते हैं ये पढ़ने की जरूरत है। कॉपर इंडस्ट्री, डोंट रीड द प्रोसेस, आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। कुछ होगा करंट अफेयर्स में तो मैं आपको बता दूंगा, बट हाँ स्लैग क्या है और पोल्यूशन क्या है दिस वी नीड टू रीड। सिमिलरली फॉर जिंक, एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम में रेड मड क्या होती है, अब ये रेड मड इज कनेक्टेड टू एल्यूमिनियम, एटलीस्ट दिस मच यू शुड नो। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन हैड कम ऑन फर्नेस ऑयल, तो अब यहाँ पोल्यूटेंट्स पढ़ोगे तो आप पढ़ लोगे कि हाँ यार यहाँ फर्नेस ऑयल यूज होता है, राइट। अब देन देर आर अ फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर, अगेन पोल्यूटेंट्स क्या है बस इस पे फोकस करना है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन, कि पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से पोल्यूटेंट्स क्या निकलते हैं, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू फोकस ऑन, राइट। लास्ट इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री हम वैसे भी काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, बट अगेन पोल्यूटेंट्स एंड यूसेज। नाउ विद दिस आर डिस्कशन ऑफ एनवायरनमेंट इज कंप्लीट। आई नो लास्ट का जो पोल्यूशन का पार्ट है दैट इज़ फेयरली टफ पार्ट, ईजी नहीं है पोल्यूशन का इतना सब कुछ पढ़ना, बट सी क्वेश्चंस डू कम। नाउ आई कैन इन इफ आई वाज टू जस्ट गिव यू एडवाइस ऑन दिस कि इसको डील कैसे करना है, माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आपने ये लेक्चर देख लिया, एक बार ये डॉक्यूमेंट आप ढंग से पढ़ लो, ठीक है। वंस रीड इट प्रॉपरली एंड हाईलाइट इट, हाईलाइट ओनली द पार्ट्स वेर यू थिंक MCQs कैन बी आस्क्ड, वो मैंने आपको काफ़ी हेल्प करी है इन द पास्ट 2 लेक्चर्स बताने की, राइट। एंड देन रिवाइज इट वंस, जस्ट एक बार रिवाइज करो और जितना याद रह गया बहुत है। जो भी इन इंडस्ट्रीज में से करंट अफेयर्स में होगा मैं आपको खुद बता दूंगा, करंट अफेयर्स वाले जो इंडस्ट्रीज होंगी उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि कोई करंट अफेयर्स में सीमेंट इंडस्ट्री पे कुछ आ गया या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पे कुछ आ गया, देन दैट इंडस्ट्री वी विल रीड इन डिटेल, नॉट ऑल ऑफ देम, बट यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया एंड वी आर जस्ट कवरिंग आर बेसिस यार। अदरवाइज हमने एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से कवर किया है, तो डिफिकल्ट पार्ट है ये, बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, बट कई बार हो सकता है वो इस पे ही 4-5 क्वेश्चन पूछ लें, राइट। एंड वी डोंट नो हाउ थिंग्स आर, अगर वो इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 पूछ लेंगे तो मोस्ट पीपल विल नॉट नो, सो इवन इफ यू नो 2 or 3 यू विल बी वे अहेड, right? So we just have to cover our bases. So with that, I'll just end this lecture. Thank you for your time. We're now done with all static parts of environment. Static part is completely done. We only have to do current affairs now, and current affairs will start from the upcoming Monday. Thank you. Bye-bye.